أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو، دل روندا اے آقا دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو، ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا، ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، آسی دی تمنا روے آکے مدینے وچ، آسی دی تمنا روے آکے
کے مدینے وچ باویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بیٹھا دینا باویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بیٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری اور سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہوں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر. اور آج کی ہماری گفت و شنید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا فیضان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کے قرآن و حدیث میں فضیلت کیا ہے، بسم اللہ کی باطنی تشریح کیا ہے، بسم اللہ میں چھپے اسم اعظم کون سے ہیں، پھر اسم ذات رحمان اور رحیم کی خصوصیات کیا ہیں، ان سے ملتے جلتے قرآنی شرعی اعمال اور وظائف کون سے ہیں. اسی طریقے سے حرف با کا بسم اللہ میں کیا مقام ہے، لوہے اسم با کیا ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے کیا روحانی فوائد ہیں. اس سے آگے چلتے ہوئے بسم اللہ کے جو زکوٰۃ کے طریقے ہیں وہ کون سے ہیں، بسم اللہ سے عورتوں کے پوشیدہ امراض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے قسط وار مرحلہ وار بسم اللہ کو ڈسکس کیا فیضان بسم اللہ کے سلسلے کے اندر. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفت و شنید ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بسم اللہ شریف سے آپ جادو کا علاج کیسے کریں گے. جادو کیا ہے، بسم اللہ شریف سے جادو کا علاج. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہم آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جادو کیا ہے، اور اس پر میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو بھی کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے سننے والے، ان کے اکثر اور بیشتر وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کفر ہے، جادو کو ڈسکس کرنا کفر ہے.
जादू के मुताल्लिक बातें करना ये भी कुफ्र है, और ये आप तोहमात को बढ़ा रहे हैं, आप शिर्क को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को उनकी मैं कदर करता हूँ और उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। तो आज की गुफ्त शुनीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्म से भरपूर होगी। कुरान और अहादीस की रोशनी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या जादू नामी कोई चीज़ इस कायनात में मौजूद है, क्या जादू से रिलेटेड कोई चीज़ इस कायनात में एग्जिस्ट करती है, या कि ये सारा वहम है और झूठ है। देखें, कुरान के अंदर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102, आप उसकी जाकर ट्रांसलेशन पढ़ें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि जादू है या नहीं है। जादू एक कुरानी मौजू है मेरे भाई, और मैंने इस पर तफसीली एक वीडियो बनाई है। हमारे चैनल में सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर उनको सुने। अब आपका खुद का मुताला वसी ना हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने अंग्रेज की बनाई हुई थ्योरीज को पढ़ा, आपने नॉन मुस्लिम की बनाई हुई रिसर्चेज और उन पर तजर्बात किए, उनको पढ़ा। आप कभी कुरान को भी पढ़ते फुर्सत में, आप कभी अहदीस पाक का भी मुताला करते, तो आपके इल्म में इजाफा होता कि जादू से रिलेटेड नामी कोई चीज हमारी इस कायनात में एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो कुरान में उसको इतनी जगहों पर क्यों डिस्कस किया गया है। और जादू को एक्सपोज करना, जादू के मुताल्लिक पढ़ाना, ताकि जादू की हकीकत को समझ सकें, इसलिए कि जादू से बेहतरीन तरीके से बचा जा सके। हम उसमें कोई जादू सिखा तो नहीं रहे, अल्लाह रहम करे, और मैं लानत भेजता हूं जादू सीखने और सिखाने वालों पर। मैं आपको कुरानी नॉलेज सिखा रहा हूं, और चूंकि कुरान के मुकाबले में शयातीन ने एक ऐसे इल्म को लॉन्च किया जो कुरान के मुकाबले का, उन्होंने अपने लिहाज से कुरान के मुकाबले का एक जादू से भरपूर इल्म उन्होंने लाया, और जिसने बहुत सारी कौमों को बर्बाद किया, वो एक पूरा नॉलेज है। और जादू एक कुरानी मौजू है मेरे भाई। जादू तो कुरान में खुद डिस्कस हुआ। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 का तर्जुमा आप पढ़ लें। इसी तरीके से और बहुत सारी जो है ना मुतअद्दिद आयात में जादू को डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पर फिरौन और हजरत मूसा के दरमियान, हजरत मूसा और फिरौन के जादूगरों के वाक़ये को कुरान में डिस्कस किया गया है। अब अल्लाह ने कुरान जादू को बढ़ा रहा है? जादू को डिस्कस करना इस लिहाज से ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग कुरानी और मसनून आमाल पर आ सकें। क्या ऐसा करना शिर्क है? तो फिर मेरे ख्याल में आपको शिर्क की हालतें और शिर्क की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। कुरान में हारूत व मारूत का किस्सा डिस्कस हुआ, और फिर वो जो जादू सिखाते थे लोगों को और वो जमीन पर आजमाइश के लिए उतारे गए, ये पूरा किस्सा कुरान में मौजूद है कि वो जो लोगों को रोकते थे, मना करते थे कि हम तो आजमाइश में हैं, तुम ये जादू ना सीखो। और फिर बाकायदा कुरान खुद कह रहा है कि वो ऐसी चीज सिखाते थे कि जो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा कर देती, जो मियाँ बीवी में सहर नफाक की बात की कुरान ने, सहर तखय्युल की कुरान में बात हुई। अल्लज़ी युवस्विसा, ये क्या है? ये तो कुरानी मौजू है मेरे भाई। कुरान ने खुद इसको डिस्कस किया, अहदीस पाक है इसकी बाकायदा। चारों कुल हुजूर के पर होने वाले जादू के इलाज के तौर पर उतारी गई, और बाकायदा तौर पर सही बुखारी की हदीस है कि वो जो दो हुजूर ने ख्वाब देखा, जो दो फरिश्तों ने आपस में गुफ्त शुनीद की, वो हदीस है। वो तो अब मेरी माज़ल्लाह मैंने उसे गढ़ा तो नहीं है। हुजूर ने बाकायदा तौर पर जादू को डिस्कस किया, जादू का इलाज बताया और जादू का तोड़ बताया। सूरह फातिहा के साथ, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, हसार की दुआओं के साथ, मावज़तैन के साथ, चारों कुल के साथ, बैतुल खला की दुआ के साथ, बीवी से मुबाशरत के दौरान की दुआ के साथ, बहुत सारे मसनून जिक्र हैं, अज़कार हैं, जो हदीस का ज़ख़ीरा हुआ पड़ा है। तो मेरे भाई, हर चीज़ को आप कुफ्र और शिर्क कहकर यूं ना करें, ऐसा ना करें। आप अपने मुताले को बढ़ाएं। आप कुरान के रोजाना तकरीबन 2 सफ़ों की ट्रांसलेशन पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसमें आप कहीं ना कहीं जादू को भी पढ़ लेंगे। तो क्या जादू में कुरान को प्रमोट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसे ही हम
میں نے بھی ہند کے تنتر کے اوپر جتنی ویڈیوز بنائی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بنائی ہیں تاکہ لوگ جادو سے، شیاطین سے محفوظ ہو سکیں قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھ کے، معذرت کے ساتھ میری طبیعت کیونکہ رمضان شریف چل رہا ہے اور دن بھر کی مصروفیات کے ساتھ پھر اتنی طویل گفتگو میں اور افطاری میں کچھ ایسی چیزیں، دن بھر کی پیاس کی وجہ سے تھوڑی سی میری طبیعت میں ناسازی ہے، اور اکثر افطاری کے بعد ہم ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ٹاپک پر دھیان دیں گے کہ میں آپ کو کون سی چیز دے رہا ہوں۔ میں آپ کو خیر کا علم دے رہا ہوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے جادو کی حیثیت کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو جادو قرآن کی بہت ساری آیات میں ڈسکس ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم نے جو ان کے متعلق جادو کی بات کی وہ ڈسکس ہوئی، حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا آپس کا قصہ اس کو ڈسکس کیا گیا، ہاروت و ماروت کے قصے کو ڈسکس کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضور کے لیے معوذتین اتاری گئی یا چاروں قل اتارے گئے۔ احادیث پاک میں، بخاری اور دوسری بہت ساری احادیث پاک میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جس کھانے پر، جس چیز پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اور اختیار کس نے دیا شیطان کو؟ شیطان کو اختیار تو اللہ نے دیا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جادو اللہ کے اذن، باذن اللہ تعالی، اللہ کے اذن سے ہی جادوگر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن تاہم جادو ہے، یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ جادو ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے ہماری اس کائنات میں۔ تبھی تو جادو کا علاج ہوا، تبھی تو جادو کا علاج اترا، اور باقاعدہ حضور نے جادو سے بچنے کے لیے قرآنی وظائف صحابہ کو تعلیم کی ہے۔ شیاطین سے بچنے کے لیے صحابہ کو قرآن سے جو ہے نا قرآنی وظائف تعلیمات کیے گئے۔ اور جادو کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ جادو کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے سحر۔ کیا؟ سحر۔ اب یہ جو سحر ہے، یہ اس کا لفظی مطلب ہے کہ ڈھپی ہوئی چیز، ڈھنکی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ یہ لفظ سحری، رمضان چل رہا ہے تو لفظ سحری یہ بھی اسی سحر سے ہے۔ سحری کہتے ہیں چھپے ہوئے کھانے کو، کیونکہ یہ کھانا رات کو کھایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سحری کہا گیا۔ اور سحر بھی ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو ڈھپ کے کی جائیں، جو چھپا کے کی جائیں، انہیں سحر کہتے ہیں، انہیں سحر کہتے ہیں۔ سحر کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث پاک میں ہے، اور صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ صحابہ کو باقاعدہ اس کا علاج تعلیم کیا گیا، بتایا گیا صحابہ کو۔ تو میں اب آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں کہ سحر کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ سحر کا وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آپ سحر کو اس طریقے سے سمجھیے کہ سحر کیا ہے۔ سحر دراصل شیاطین نے کلام پاک کے مقابلے میں کچھ منتر جنتر اور کچھ ایسی چیزیں تیار کی اور پھر وہ لوگوں کو سکھائی گئیں، پھر لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ جادو کا ہوتا ہی استعمال غلط ہے۔ جادو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جادو کرنے والا کافر ہے، اور باقاعدہ طور پر احادیث پاک ہے۔ میں سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3034 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ملک کو فتح کیا، اور حضرت عمر نے ایک ملک کو فتح کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ وہاں پر جو جادوگر ملے انہیں فوراً قتل کر دینا، ان سے ملتے ہی انہیں قتل کر دینا، کیونکہ وہ بہت خطرناک جادو جانتے ہیں۔ اس ملک میں بہت زیادہ جادوگر رہا کرتے تھے۔ تو حدیث میں تو اس شہر کا بھی ذکر ہے، میرے خیال میں فارس کا ذکر ہے، اللہ کمی بیشی کو معاف کرے۔ تو بہرحال جادو کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات کو غور سے سنیں، ایک تو جادو قرآنی موضوع ہے، میں نے اس کے حوالہ جات پیش کیے، اور ایک حدیث پیش کی بخاری کی، دوسری حدیث پیش کی میں نے ابو داؤد کی، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں بہت ساری حدیثیں پیش کر سکتا ہوں۔ چونکہ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں یہ حدیثیں ان سے کنارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے بسم اللہ شریف سے جادو کا علاج۔
जादू क्या है, जादू क्या है, जादू क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में जादू की हकीकत और बिस्मिल्लाह शरीफ से जादू का इलाज। अब आप जादू को इस तरीके से समझें कि जादू कुछ अल्फाज होते हैं जो शयातीन ने इबारतें बना रखी हैं और वो फिर अपने आमिल को, अपने शैतानी सिफलीगर को वो बताते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आमिल होता है उसके साथ शैतान का एक एग्रीमेंट होता है, शैतान का एक एग्रीमेंट होता है। शैतान उसे बोलता है, शयातीनी जिन्नात उसे बोलते हैं कि हम आपके साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक आपके सर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जब तक आपके सर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। दूसरा, कुछ शयातीन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक आपकी ये दाढ़ें रहेंगी उस वक्त तक हम आपके साथ रहेंगे। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं, शयातीनी जिन्नात, जो कहते हैं कि नहीं, अगर आप अपना पहला बच्चा, अपनी पहली औलाद को अपने हाथों से मार दोगे, नौजीदा बच्चे को, तो फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कुछ कहते हैं कि जब तक तुम्हारी जिनसी कुव्वत तुम्हारे पास होगी उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम जिंदगी भर, जब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी रहेगी उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अब ये मुख्तलिफ उनके मुआहदे होते हैं, लिमिटेशन होती है उनकी, उनका एक मुआहदा होता है आमिलीन कामिलीन से, सॉरी आमिलीन कामिलीन नहीं, सिफलीगरों से, शयातीनी आमिलीन से। तो इस मुआहदे के तहत वो उसकी कुछ मदद करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जादू जो है ये कुछ कलिमात होते हैं, जैसे आप खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त मूड में बैठे हों, साफ सुथरे और खूबसूरत मूड में बैठे हों, और अचानक से कोई शख्स आए और आपको आके गालियां देना शुरू कर दे। अचानक से कोई शख्स आए और आपको गालियां देना शुरू हो जाए तो आपका क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखें भी लाल हो जाएंगी और आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा। ये कालिमात के असरात हैं, उन अल्फाज की फ्रीक्वेंसी के असरात हैं, उन अल्फाजों के बातनी असरात हैं, उसी को जादू कहते हैं। ऐसे जादू भी ऐसे लफ्ज होते हैं जो जहर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो शिर्क से मुज़य्यन होते हैं, गैरुल्लाह की मदद से मुज़य्यन होते हैं, शयातीन से मुज़य्यन होते हैं, शयातीन की मदद तलब की जाती है उसमें, और फिर शयातीन उनसे शदीद कुफ्र करवाते हैं, शदीद गुनाह करवाते हैं, जिसमें जिना हो गया, कत्ल हो गया और भी बहुत सारी गंदी चीज़ें हो गई, वो करवाते हैं। और फिर जाके शयातीन उनकी कुछ हद तक मदद करते हैं, कुछ बुरे अफ़आल करने में, कुछ बुरे कामों को करने में। जादू अल्फाज की तरह अल्फाज होते हैं और उनका असर होता है। और जादू भी कायनात में अल्लाह के इज़्न से लाया गया है, अल्लाह के हुक्म से लाया गया है। जैसे अल्लाह के अम्र से ही सांप में जहर बनता है। अब वो एक इंतहाई खतरनाक चीज है सांप का जहर, कि अगर सांप किसी को डस ले तो बंदा मर जाता है। अब क्या सांप किसने बनाया है? फिर सांप के अंदर जहर किसने बनाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे सांप का जहर नुकसानदा है लेकिन सांप को पैदा अल्लाह ने किया है। जैसे बिच्छू का डंग जहरीला है, खतरनाक है, लेकिन बिच्छू को पैदा अल्लाह ने किया है। ऐसे ही अल्लाह ने कुछ चीज़ें ऐसी बना दी हैं हमारी इस कायनात के अंदर जो इंतहाई ज़रर है, इंतहाई ज़रर पहुंचाने वाली हैं, इंतहाई नुकसानदा है। अब वो अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के इज़्न से बनी है। ऐसे ही जादू है, जादू भी ज़मीन पर अल्लाह के इज़्न से उतरा है। ठीक है। लेकिन अब जादू का इस्तेमाल ऐसे ही गलत है जैसे आप किसी को सांप का जहर पिला दें, ये भी ऐसे मना है और हराम है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ की तरफ, जादू के इलाज की तरफ। देखें, जो बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल होता है, जो बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल होता है, जो बिस्मिल्लाह शरीफ पर मेहनत करता है, जो बिस्मिल्लाह शरीफ पर अपनी मुजाहिदा करता है और इसकी ज़कात को देता है, इसकी ज़कात देता है बिस्मिल्लाह शरीफ की, तो ऐसा आमिल जहाँ से गुजरता है वहाँ से जादू में मुसल्लत जिन्नात जल जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि जब बिस्मिल्लाह को उतारा गया तो मशरिक की तरफ बादल छट गए, जानवरों ने कान लगा लिए और शयातीन पर आग को मारा गया, शयातीन पर आग को मारा गया।
फिर सुने, शयातीन पर आग को मारा गया। तो मालूम हुआ कि शयातीन पर आग बरसती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से शयातीन पर आग बरसती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती, उस खाने पर शैतान को अख्तियार दे दिया जाता है। उस खाने पर शैतान को अख्तियार दे दिया जाता है। इसी तरीके से सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ता है, तो शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। इसी तरीके से जब वो खाना खाने बैठता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ता है, तो शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि अब हम इस घर में खा भी नहीं सकते। तो ये हदीस पाक है। और मेरी हदीस रसूल से बिस्मिल्लाह की फजीलत वाली वीडियो में मैंने इस हदीस का हवाला भी पेश किया है। वो तफसील वीडियो मेरी मौजूद है, पूरी 1 घंटे की। आप जाके सुने, आप अपने मुताले को वसी करें, आपको पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को हवाले का दौरा होता था कि हवाला दे। मैंने उसमें जितनी हदीसें पेश की हैं, अक्सर और बेशतर के हवाला जात दिए। आप जाकर उसको पढ़ें और सुने। अब हदीस रसूल में खुद हुजूर बता रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आप दाखिल होंगे, शैतान आपके साथ घर में दाखिल नहीं हो सकता। और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे तो शैतान उसमें नहीं शरीक हो सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकलेंगे तो शैतान आपको नुकसान और ज़रर नहीं पहुंचा सकता। और जब बिस्मिल्लाह को उतारा गया तो शैतान पर आग मारी गई, शयातीन पर आग मारी गई। जब कोई शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ता है तो इंसान और शैतान की दरमियान, इंसान की शर्मगाह के दरमियान और शैतान के दरमियान, इंसान की शर्मगाह और शैतान के माबैन बिस्मिल्लाह पर्दा बन जाता है। अब इन 4 अहादीस पाक से हमें एक बात तो जानने को मिली कि शयातीन बिस्मिल्लाह से जलते हैं। हदीस पेश करता हूं, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी बैठ के खाना खा रहे थे, 7 सहाबा भी बैठ के खा रहे थे। तो एक कमसन बच्चा आया और वो भी आकर खाने में शरीक हो गया। जैसे ही वो खाने में शरीक हुआ तो हजूर ने अपने हाथ को पीछे हटा लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो फिर कुछ देर के बाद हजूर मुस्कुरा दिए। तो सहाबा ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो हजूर ने इरशाद फरमाया कि जब ये बच्चा हमारे साथ खाने में शरीक हुआ तो शैतान भी इसके साथ खाने में शरीक हुआ। जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो बिस्मिल्लाह की बरकत से शैतान ने खाया हुआ कह करके उलट दिया और शैतान की आंतें फट गई। तो उसकी इस बेकली और बेकरारी को देख के मैंने मुस्कुरा दिया। अब ये 5 अहादीस के हवाला जात हैं। हवाला जात मांगने वालों, मैं आपको हवाला जात दे रहा हूं। हजूर की ये 5 अहादीस पाक हैं जिनसे वाज़े तौर पर मिलता है कि शयातीन पर बिस्मिल्लाह से आग बरसाई जाती है। जहां बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए वहां शैतान को अख्तियार खत्म कर दिया जाता है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए तो अल्लाह की तरफ से आफियत और बरकत डाली जाती है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है तो शैतान और इंसान के शर्मगाह के दरमियान बिस्मिल्लाह पर्दा बन जाता है, रुकावट बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जादू किससे होता है? शयातीन से, शयातीनी जिन्नात से। कुफरी और शिरकिया अफ़आल करके कुरान और दूसरी उन तमाम तर चीज़ों की तौहीन करके जो अल्लाह का कुर्ब देती हैं, जो अल्लाह का पता देती हैं। क्यों इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया? क्योंकि जादू में शयातीन को माबूद माना जाता है। जादू इस्लाम में और दूसरे कई मज़ाहिब में जादू को हराम समझा जाता है। चूंकि ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली कि जादू में खास किस्म के शयातीन से एग्रीमेंट करके फिर उनसे मदद ली जाती है। और मैंने 5 अहादीस पाक पेश की हैं आपको, 5 अहादीस पाक पेश की हैं कि जादू के बिस्मिल्लाह शरीफ का जो वजीफा है, बिस्मिल्लाह शरीफ का एक बार का पढ़ना शैतान की चीखें निकाल देता है, शैतान पर आग मारता है,
शैतान के खाए हुए खाने को पेट से बाहर निकाल फेंकता है, शैतान की आंतों को गलने और सड़ने पर मजबूर कर देता है। बिस्मिल्लाह शरीफ, यह हदीस पाक से साबित है। मैंने 5 हदीसें आपको पेश की हैं, 5 हदीस पाक पेश की हैं। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 606 है, जिसमें हजूर ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है, हजरत अली उसको रिवायत कर रहे हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो बैतुल खला में या जब भी वो अपनी शर्मगाह को से कपड़ा हटाता है तो बिस्मिल्लाह इंसान की शर्मगाह और शैतान के माबैन पर्दा बन जाता है। क्या बन जाता है? पर्दा बन जाता है। तो जादू चूंकि शयातीन से है तो जादू का बेहतरीन इस्तेमाल है बिस्मिल्लाह। जादू का बेहतरीन इस्तेमाल है बिस्मिल्लाह। जादू का बेहतरीन इस्तेमाल है बिस्मिल्लाह। हमारे यहां बदकिस्मती से कि हमारे यहां जूते को गाड़ी के नीचे बांधने को बरकत माना जाता है। गधे और घोड़े के पांव से उतारी गई नाल को बाय से बरकत माना जाता है कि यह नजर बद का इलाज है। चमड़े की जूती 25 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी के पीछे लटकी हुई होती है। ए मुसलमान, अब तेरा अकीदा तो इन जूतियों पर आ गया है ना कि हम चमड़े की जूती से जादू के इलाज पर यकीन रखते हैं। हम काली हंडिया, काले कपड़े, काले बकरे से जादू के इलाज पर यकीन रखते हैं। शिरकिया तावीज़ों और शिरकिया इबारात से मंसूब इबारतों से जादू के इलाज पर यकीन रखते हैं। अल्लाह के नाम से जादू के इलाज पर यकीन रखने के लिए हमें हवाला चाहिए। हमें हवाला चाहिए। यह सोचने की बात है कि ऐज़ा मुसलमान, क्या कुरान से, अल्लाह के नाम से शिफा मिलने पर हवाला जांच आप मांग कर यकीन करेंगे? क्या आपको अल्लाह के कुरान पर, अल्लाह के फरमान पर, अल्लाह के इसमें ज़ात अल्लाह पर यकीन नहीं है कि जिसकी वजह से ये आसमान खड़ा है, जिसकी वजह से ये जमीन अल्लाह ने बिछाई, जिसकी वजह से जन्नत और जहन्नम है? तो मेरे भाई, होश के नाखुन लें। आप बिस्मिल्लाह को क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात सुनाता हूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर थे। हजरत मूसा ने फिरौन के लिए बद्दुआ की, फिरौन के लिए बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इसको तू गर्क कर दे, इसको तू गर्क कर दे और इस पर अपने अजाब को भेज, इस पर अपने अजाब को भेज। चनाचा कुछ देर के बाद हजरत मूसा वहां से गुजरे तो देखा फिरौन वैसे बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो देखकर अल्लाह से शिकवा किया कि ए अल्लाह, इस पर अपना अजाब भेज। फिरौन कौन था? जो खुदाई का दावा करता था, कहता था मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। क्या कहता था? मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तू इसकी सरकशी को देख रहा है, तू इसकी सरकशी को देख रहा है और मैं इसके महल के सदर महल यानी जो इसका घर है उसके दरवाजे को देख रहा हूं। तो हजरत मूसा फौरन भागे और जाकर फिरौन के महल के दरवाजे को देखा तो दरवाजे पर लिखा था बिस्मिल्लाह। पूरी बिस्मिल्लाह नहीं, सिर्फ यह लिखा था बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने नाम की वजह से इसे सजा नहीं दी, इस पर अजाब नहीं भेजा। और जहां सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा हो वहां अल्लाह का अजाब टल जाए ऐसे शख्स के लिए जो खुदाई का दावा कर रहा हो और जिसे अर रहमान और रहीम के साथ बिस्मिल्लाह नवाजा गया, क्या वहां से जादू नहीं टूटेगा? क्या वहां से जिन्नात नहीं भागेंगे? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। हजरत मूसा अला नबीना को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया की, आपकी और मेरी फजीलत बयान की, जिसे सुन के हजरत मूसा ने फरमाया कि ए अल्लाह, मुझे वो उम्मत अता फरमा, मुझे वो उम्मत अता फरमा। तो अल्लाह ने उनकी फरमाया कि वो उम्मत मैंने अपने महबूब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी है, वो उम्मत हजूर के लिए रखी है। तो फरमाया कि अल्लाह, तूने उनको इतनी बड़ी फजीलत कैसे दी? तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, मैंने उन्हें 3 इस्म अता किए हैं, इस वजह से मैं उन्हें 3 इस्म आज़म अता करूंगा। उन इस्म आज़म की बरकत से मैंने उनको फजीलत दी है, मैंने उनको
फजीलत दी है। फरमाया कि अल्लाह वो इसमें आज़म कौन है? फरमाया अल्लाह रहमान और रहीम। और बाद रिवायात में आया अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वहां हजरत मूसा के पास एक शख्स बैठा था, एक शख्स बैठा था जो नबीना था आंखों से, जो आंखों से नबीना था। तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ऐ मेरे मालिक, तुझे उन्हीं नामों का वास्ता, तुझे उन्हें अल्लाह रहमान और रहीम जैसे बाबरकत इस्म का वास्ता मुझे बीनाई अता फरमा। और यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त उस शख्स को बीनाई अता फरमाई। आप जादू का तोड़ पूछ रहे हैं और दर बदर भटक रहे हैं, काले बकरे, सदके, जाफरान और पता नहीं क्या क्या किन किन चीजों के इस्तेमालात करते फिर रहे हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह से जादू का इलाज करें और ये होगा, क्योंकि जादू शयातीन से है और शयातीन की मौत है बिस्मिल्लाह शरीफ में। हमारे यहां बदकिस्मती से जो खानकाहों का असल दर्स था जो वो यही था जो मैं आपको दे रहा हूं कि कुरानी वज़ाइफ बताना। आज लोग कुफ्र और शिर्क से भरपूर मुद्रे और पता नहीं कौन कौन सी अजीबो गरीब इबारतें बनाकर आपको पेश कर रहे हैं और आप बड़े यकीन और एतमाद के साथ उन्हें पढ़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप उसमें कहीं कुफ्र कर रहे हैं, खैरुल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। आपको पता है कि अल्लाह कातिल को और मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्या आपने ये हदीसें नहीं पढ़ी? तो क्यों ना हम जादू का इलाज अल्लाह के नाम से करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, तो हमें क्या होगा? इसमें हमारा कौन सा नुकसान होगा? आपको कहीं मेरे पास, किसी और के पास मुझे फोन करने की भी खुदारा कोई जरूरत नहीं है। कोई मुझे कोई फोन ना करे जादू के इलाज के लिए, आप खुद जादू का इलाज करें। और मैं कोई बिजनेसमैन आमिल नहीं हूं कि जो ठेके पर वजीफे करता हूं, ठीक है? आप खुद घर बैठ के अल्लाह का नाम पढ़ें। अल्लाह के नाम में बरकत है, आफियत है, शयातीन पर अल्लाह के नाम की मार है। आप बिस्मिल्लाह को पढ़ें, बिस्मिल्लाह के फलसफे पर आए आपको यकीन जाने नफा होगा, फायदा होगा। मुल्क रूम के बादशाह को सरदर्द की शिकायत हुई, मुल्क रूम के बादशाह को सरदर्द की शिकायत हुई। चनाजा जब यह बात हजरत उमर को पता चली तो हजरत उमर ने उसके लिए तोहफे के तौर पर एक टोपी तैयार करवाई, गुलाम से कहकर एक टोपी बनवाई और उस टोपी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख कर रख दिया और फरमाया कि ये मेरी तरफ से हदिया है। तेरा ये जो सर दर्द है, इस सर दर्द को खत्म करने के लिए इस टोपी को अपने सर पर ओढ़, अल्लाह तुझे शिफा देगा, मेरा रब तुझे शिफा देगा। चनाचा उस शख्स ने, मुल्क रूम के बादशाह ने उस टोपी को अपने सर पर रखा और ऊपर ताज को पहना। तो यकीन करें कुछ लम्हात में ही अल्लाह ने उसको शदीद सर दर्द से निजात अता फरमाई। देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने इतना इलाज व मुआलजा किया और मैं ठीक ना हुआ, और ये इस टोपी को पहनने से मैं ठीक हो गया। हो ना हो इस टोपी में कोई राज है, इस टोपी में कोई राज है। इस इश्तियाक ने, इस तजस्सुस ने, इस तशनगानगी ने उसे मजबूर किया और उसने उस टोपी को खोल कर जब देखा तो उस टोपी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। तो उसने सोचा कि जिस रब के नाम में इतनी ताकत और तासीर है, जिस रब के नाम में इतनी ताकत और तासीर है, अगर मैं उस पर ईमान ले आऊंगा तो उसमें कितनी ताकत और तासीर होगी। चनाचा वो शख्स, वो बादशाह मुसलमान हो गया। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। आप बिस्मिल्लाह को क्या समझते हैं? इसमें जात को उतारा गया है और इसमें जात की वजह से आपका ये आसमान बगैर सुतून के खड़ा है। इसमें जात की वजह से अल्लाह का अर्श कायम है। इसमें जात की वजह से ही आपका और मेरा वजूद यहाँ है, ये जमीन जिंदा है। इसमें जात की वजह से ही आसमानों से अल्लाह के नाम की बरकत से ही बारिश गिर रही है, और आप बिस्मिल्लाह को कुछ समझते ही नहीं है। बिस्मिल्लाह अपने आप में एक बहुत बड़ा वजीफा है। बिस्मिल्लाह अपने आप में एक बहुत बड़ा वजीफा है। अब हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ से जादू का इलाज। बिस्मिल्लाह शरीफ से आसान जादू का इलाज हर कोई शख्स खुद करे।
पहली बात, 786 बार आपने बिस्मिल्लाह को रोजाना पढ़ते रहना है, रोजाना हसार करके पढ़ना है। आयतल कुर्सी चारों कुल अव्वल आखिर 13 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपना रूहानी और जिस्मानी हसार करें। अपने और अपने अहले खाना का आपने क्या करना है, हसार करना है। और जब हसार कर ले फिर आपने 786 बार बिस्मिल्लाह की इबारत को पढ़ना है और ये अपना मामूल बना लें। उसके बाद आप जादू का, नजर बद का, जिन्नात का, औरतों के पोशीदा अमराज का, हर मर्ज का, कैंसर से लेकर कोई भी एड्स, जितना भी मर्ज हो तो आप बिस्मिल्लाह से उसका इलाज करें। आप बिस्मिल्लाह से उसका इलाज करें। मैंने इससे बढ़ के बिस्मिल्लाह की आपको क्या फजीलत बताऊं कि जब बिस्मिल्लाह उतारा गया शयातीन पर आग मारी गई। हजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उधर शैतान का पेट फट गया, उसकी आंतें गलने सड़ने लग गई। तो ये शयातीन की मौत है। आपने जब ये कर लेना है 40 दिन, तो उसके बाद आपने इसका इलाज शुरू कर देना है। कैसे? आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को 7 बार, 11 बार, 21 बार, 19 बार पढ़ना है और पानी के पे दम करके अपने बच्चों को पिलाएं, अपने बच्चों को पिलाएं। सहर वाले, जादू वाले, नजर बद वाले लोगों को पिलाएं और बार बार इस वजीफे को करें। आपको नफा होगा, आपको नफा होगा, इससे आपको नफा होगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स पर कोई खतरनाक जादू हो, क्या हो, खतरनाक जादू हो, तो वो क्या करे कि जैतून के तेल को ले, जैतून के तेल को ले, जैतून के तेल को ले, इत्र को ले, पानी को ले, पानी की बोतल पर, जैतून पर, शहद पर, इत्र पर बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 बार पढ़े, 786 बार पढ़े या 1900 बार पढ़े और 19 दिन तक पढ़ता रहे और रोजाना वो इत्र लगाए, जैतून के तेल से मालिश करे और पानी जब भी उसको प्यास लगे आप सहरजदा मरीज को वही पानी पिलाएं। और ये इलाज आप 40 दिन से 90 दिन तक करें। यकीन करें, शैतान ने खुद भी जादू किया होगा तो वो टूट जाएगा। यकीन के साथ करें, ईमान की दौलत के साथ करें, आपको नफा होगा, आपको नफा होगा। यकीन जाने आपको नफा होगा और इसमें बड़ी बरकत है, आफियत है। इसी तरीके से आप बिस्मिल्लाह को 7 बार कागज के ऊपर लिखें और उसका पानी धोकर मरीज को पिलाएं, हर तरह के मूजी अमराज के लिए, और साथ मेडिकेशन करते रहें, इलाज भी करते रहें, तो इंशाअल्लाह अजीज उस मरीज का उस मर्ज से सद्देबाब हो जाएगा। इसी तरीके से आप 7 बार बिस्मिल्लाह को जाफरान से लिखें और लिखकर अपने मरीज के गले में पहना दें। बिस्मिल्लाह के नाम की बरकत से अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएंगे। इससे बढ़ के और क्या वजीफा मैं आपको दूं? इससे बढ़ के कोई और वजीफा हो सकता है कि आपको पढ़ने के लिए अल्लाह का नाम दे रहा हूं, रब सच्चा, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे। तो मेरे भाई, आप बकरे के चक्कर में, हंडिया के चक्कर में, सदके के चक्कर में और इन लोगों के चक्कर में ना आए, खुदारा ना आए, खुदारा ना आए। सिर्फ बिस्मिल्लाह के फलसफे पर आ जाए। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि अल्लाह के नाम में बरकत है, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। मैं किसी अपने तवीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी अपनी लोह की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी अपनी तस्बीह, चराग और इन चीजों की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। मैं तो रब के नाम की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका कलाम सच्चा, उसका नाम सच्चा। तो आप जादू का इलाज इस तरीके से करें, किसी को अलग से कोई बिस्मिल्लाह शरीफ के इस अमल की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। हर उस शख्स को जो जादू के इलाज के नाम पर गधे की नाल ढूंढ रहा है ना, वो अल्लाह का नाम ढूंढे, वो अल्लाह का नाम भी पढ़ के देखे, आपको नफा होगा, आपको नफा होगा। जो शख्स बरकत के लिए ना, जो शख्स बरकत के लिए घर में गीदड़ सिंघी रख रहा है ना, तो खुदा का नाम लो, बिस्मिल्लाह लो, बिस्मिल्लाह लो, अल्लाह का नाम लो और उसे आजमा लो, और उसे आजमा लो। यकीन की ताकत के साथ बरकत तुम्हारे घर में आ जाएगी। बरकत गीदड़ सिंगी में नहीं है, बरकत अल्लाह के नाम में है, बरकत अल्लाह के नाम में है, बरकत अल्लाह के नाम में है।
खुदारा अपने अकीदे की हिफाजत करें, खुदारा अपने अकीदे की हिफाजत करें। कोई भी आप पर जादू हो, नजर, आप अपने बच्चों को नजर बद का दम करें, 19 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चों को दम करें। यकीन करें अल्लाह ने कसम उठाकर कहा है कि मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसको शिफा दूंगा जिस पर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। हदीस है, ये हदीस है। इससे बढ़ के मैं क्या गारंटी दूं? इससे बढ़ के मेरे भाई मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। और रही बात इजाजत की, तो इजाजत का कोई चक्कर ही नहीं है। मेरी तरफ से हर खास व आम को रमजान के बाद जब भी कभी भी आप किसी उम्र में किसी वक्त मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं आप तक अल्लाह का कुरान लाया हूं, अल्लाह का नाम लाया हूं। खुदा की कसम अल्लाह के नाम में बरकत है, अल्लाह के नाम में बरकत है। इससे पैदाइशी नाबीनों को बिनाई मिली है। इससे अल्लाह ने फिरौन जैसे लोगों पर अपने अजाब को रोके रखा। इससे मुल्क के रूम के बादशाह को सर दर्द से निजात मिली थी। इसके पढ़ने से शैतान के अख्तियार को रोक दिया जाता है। इससे पढ़ने से शयातीन पर आग बरसाई जाती है। तो इससे बढ़ के और क्या चीजें मैं आपके लिए लाऊं? तो मेरी तरफ से आप तमाम को बिस्मिल्लाह के इस अमल की इजाजत है। आप अलग से कमेंट सेक्शन में किसी से कोई इजाजतें ना लें, कोई चिल्ले करने की जरूरत ही नहीं है। आप जाएं, अल्लाह के नाम को मुझसे लें और मैंने दे दिया, आप ले जाएं और अब इसको आजमा लें, इसको पढ़ लें। उस आयत की क्या शान होगी जिसकी हदीस में हजूर कह रहे हैं कि जिसने बिस्मिल्लाह से पहले, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, उसका वुजू ही नहीं हुआ, उसका वुजू ही नहीं हुआ। यह हदीस है और इसका मैंने हवाला भी पेश किया है अपनी हदीस रसूल वाले चैप्टर में। उस वीडियो में मैंने बाकायदा हदीस पेश की है आकाई ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसकी फजीलतों में मैंने बहुत कुछ बताया है। अब आप इसको मेरी ज़ात पर या फिर अल्लाह के नाम की, मेरे ऊपर नहीं, अल्लाह के नाम पर यकीन करके इस नुस्खे को ले जाएं और ज़िंदगी में अप्लाई करें, इसका इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आज की हमारी इस नशिस्त से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी तरफ से आपको इन तमाम अमाल की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। आपको अलग से इसकी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसको करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रमज़ानुल मुबारक में हर हफ्ते में एक नशिस्त करेंगे जो तकरीबन 1 घंटे पर होगी, जिसमें बच्चा, मेरा स्टूडेंट, एक बैठ के मेरे साथ सवाल पढ़ के बताएगा और मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। और ये जो आप सवाल करेंगे, आपके तमाम सवालात के जवाब रमज़ानुल मुबारक की इन्हीं नशिस्तों में ही दे दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपके तमाम लोगों के ज़ायका साजी को देखते हुए, आपके इस्तिखारे को देखते हुए, अलामात को देखते हुए आपको शरई और कुरानी इलाज बताएंगे। आप वो करेंगे, आपको उससे नफ़ा होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।